જય અવધૂત. આજે મહાશિવરાત્રિનો પાવન પર્વ છે અને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આપણે સૌ કોઈ જોડાયા છે. આજના કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત આપણે પૂજ્યશ્રીના સ્વાગતથી કરીશું. મહાશિવરાત્રિના ભંડારામાં જેમણે યોગદાન આપ્યું છે તેઓ પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત કરશે. સૌ પ્રથમ શ્રી શંકરભાઈ નવલભાઈ પટેલ પરિવાર ખેલાવને નમ્ર વિનંતી છે સ્ટેજ પર આવીને પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત કરે. એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય. વર્ષોથી આપણા સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા છે, અવારનવાર ભંડારા પણ કરે છે અને પૂજ્યશ્રીને સમર્પિત છે. ત્યારબાદ ભાનુબેન અરવિંદભાઈ દરજી યુએસએને નમ્ર વિનંતી છે તેઓ પણ સ્ટેજ પર આવે અને પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત કરે. એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય. ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે તો શિવરાત્રિ છે. સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં ભગવાન શિવનું ખૂબ જ મહત્વ છે. ભગવાન શિવ સચરાચરમાં વિરાજમાન છે. કણકણમાં તેઓ સમાયેલા છે અને તેઓ તો ભોળેનાથ છે. તેઓ પોતાની કરુણા થકી આ સંસારના તમામ જીવોનું કલ્યાણ કરે છે. જેઓ તેમની અનન્ય ભાવે પૂજા, ભક્તિ અને અર્ચન કરે છે તેનો ઉદ્ધાર નક્કી જ છે. તો તેમની પૂજા કઈ રીતે કરવી, તેના માટે કેવો ભાવ રાખવો, તે માટે પૂજ્યશ્રીએ ગયા ગુરુવારે એક સુંદર મજાની શાયરી બોલેલા, તો તે હું કહીશ. ના કોઈ જીદ હૈ, ના કોઈ ગુરુર હૈ હમેं, હે ભોલેનાથ तुझे पाने का सुरूर है हमें. तुझे चाहना, तुझे प्यार करना, तेरी पूजा करना, तुझे मोहब्बत करना अगर गुनाह है तो की है हमने गलती. अब तू जो चाहे वो जो भी सजा दे, तेरी हर सजा मंजूर है हमें, तेरी हर सजा मंजूर है हमें. एक बार जोरदार शायरी થઈ જાય, જોરદાર તાળીઓ. જ્યારે દરેક નાથ ભક્ત આવી ભાવના લઈને જો જીવનમાં આગળ વધે તો તેમના માટે મુક્તિના દ્વાર સહજાસહજ ખુલી જતા હોય છે. અને આપણા માટે તો આપણા સદગુરુ જ શિવ સ્વરૂપ છે અને સદગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ જ્યારે આપણે જીવન જીવી રહ્યા છે તો હું માનું છું આપણા માટે તો આ જ કૈલાસ છે. બીજી એક ખાસ જાહેરાત, શિવરાત્રિ નિમિત્તે ફોટોન મેજિક દ્વારા પણ એક કેમ્પેન ચલાવવામાં આવ્યું. આ કેમ્પેનમાં સૌ નાથ ભક્તોએ ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો અને જેટલા પણ સોશિયલ મીડિયા છે તેમાં આ કેમ્પેન ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યું. તો સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. જે યુવા વર્ગ છે તેમને મારી ખાસ અપીલ છે કે ફોટોન મેજિકમાં અવશ્ય જોડાય. આપણા સદગુરુદેવ ખૂબ જ સક્રિય છે અને હવે આપણે પણ સક્રિય થવાની જરૂર છે. અને જ્યારે સનાતન હિન્દુ ધર્મ માટે આવા કેમ્પેન થતા હોય તો આપણે સૌએ આગળ આવવાની જરૂર છે. અને હાલમાં જ તમે જાણો છો તેમ રામ જન્મભૂમિ પર રામ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ થવાનું છે. તો તે હેતુએ પૂજ્યશ્રી દ્વારા 1,11,101 રૂપિયાનું દાન કરવામાં આવ્યું. એકવાર ઊંચા હાથની તાળીઓ થઈ જાય. આપણા સંપ્રદાયના સદગુરુદેવ
સૌથી અગ્રેસર છે. કોરોના મહામારી વખતે પણ જ્યારે દિન દુખીઓ, જ્યારે ભૂખને કારણે જ્યારે વિચાર કરતા હતા કે હવે અમારું શું થશે, ત્યારે આ કોરોના મહામારી વચ્ચે પણ જરૂરિયાતમંદોનો ધ્યાન રાખીને આપણો ભંડારો અવિરત ચાલુ રહ્યો. તો સાચે જ આ શિવ સમાન જ આપણા સદગુરુ છે. તો આપણે તેમના માર્ગદર્શન મુજબ જ જીવન જીવવું જોઈએ. અને આજનો દિન તો ખૂબ જ ખાસ છે. આજે મહાશિવરાત્રિ છે, તો સાથે સાથે આજનો ભંડારો તો મહાભોગનો ભંડારો છે, જેમાં સાબુદાણાની ખીચડી, મોરિયાની મીઠી વડી, બટાકા શક્કરિયાનું શાક, છાશ, લીંબુનું ફરાળી અઠાણું પણ છે. વળી કેળા, ચીકુ, દ્રાક્ષ, દાડમ, તરબૂચ જેવા ફળોને કાપીને ઠંડી ફ્રૂટ ડીશ પણ તૈયાર કરવામાં આવી હતી, અને જેનો સૌ નાથ ભક્તોએ ખૂબ જ લાભ લીધો. તો એ માટે પણ એકવાર તાળી થઈ જાય. આ પ્રકારના ભંડારાઓ ઘણી ઓછી જગ્યાએ થાય છે, અને આપણા નવનાથ ધામમાં તો આવા ભંડારા થતા જ રહે છે. સાથોસાથ આપણા નાથ ભક્તોની સાથે જે જરૂરિયાતમંદો છે તેમને પણ આ ભંડારો પહોંચે છે. 100 થી 200 જેટલા જરૂરિયાતમંદોને આજનો ભંડારો પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો. બીજી એક ખાસ સૂચના, મહાશિવરાત્રિના ભંડારામાં ભાનુમતી અશ્વિનભાઈ અંચેલિયા પરિવાર મુંબઈ તરફથી અશ્વિનભાઈ અંચેલિયાના સ્મરણાર્થે ભંડારામાં અનસુયા પાણીની બોટલનું પણ યોગદાન આવ્યું છે. પૂજ્યશ્રીને વિનંતી છે એ બોટલના દર્શન કરાવે. હવેથી જયેશભાઈ ગળતિયા આ બોટલનું વિતરણ કરતા રહેશે. તેમની પાસેથી તમે આ બોટલ ખરીદી શકશો. આજે દર વર્ષની જેમ રાત્રે 12 વાગ્યે મહાઆરતી પણ થનાર છે, તો તેનો લાભ પણ અવશ્ય લેવો. તો હવે આજના પાવન દિને પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે કે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. आदिनाथाय विद्महे चिदब्रह्म ज्योति स्वरूपाय धीमहि तन्नो आदिगुरु प्रचोदयात्। ॐ चैतन्य आदिनाथाय नमः। गोरक्षनाथाय विद्महे शिवस्वरूपाय धीमहि तन्नो गुरुमच्छेन्द्र प्रियाय प्रचोदयात्। करचडं कृत्वा कार्यं
कर्म झुम्बा श्रवणघन झुम्बा मार संहापराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेव तत्त्वसमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हर नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव अलख निरंजन
गोरख नमः शिवाय, जय भोलेनाथ नमः शिवाय। जय शिव गोरख नमः शिवाय, जय भोलेनाथ नमः शिवाय। जय शिव गोरख नमः शिवाय, जय भोलेनाथ नमः शिवाय। जय शिव गोरख नमः शिवाय, जय भोलेनाथ नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, जय गिरनारी नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, जय गिरनारी नमः शिवाय। जय शिव गोरख नमः शिवाय, जय स्वामी दादा नमः शिवाय। जय शिव गोरख नमः शिवाय, जय सानिनाथ नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान आदिनाथ नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग एवं भगवान शिव गोरक्षनाथ की श्रद्धा भाव से पूजा आज नाथ दृष्टि हॉल में की गई। ऐसे हमारे परम देवत भगवान शिव शंभू के चरणों में, भगवान गोरखनाथ के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। साथ साथ शिव तत्व का हमें ज्ञान देने वाले, हमारे जीवत्व भाव को मिटाते हुए हमें शिवत्व की ओर ले जाने वाले, मृत्यु को छोड़ते हुए हमें मोक्ष की गति देने वाले, ऐसे हमारे सद्गुरु भगवान सानेनाथ के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। एवं जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर रोज की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, आज भी घर बैठे हुए शिवरात्रि की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहन, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मचंद्र समर्थ आदेश और जय भोलेनाथ। आज का पर्व वैश्विक पर्व है।
आज की पूजा विश्व पूजा है और आज का प्रसाद हमारे जीवन में मोक्ष का प्रसाद है, क्योंकि भगवान शिव को आदि अनादि माना गया। भगवान शिव की लीलाओं को कल्याणकारी लीला माना गया। भगवान शिव के नाम को मोक्षवर्धक और आनंदप्रद माना गया और भगवान शिव को स्वयं मुक्तिदाता माना गया। इसलिए हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव का महत्व बाकी सभी देवताओं के प्रमाण में सबसे अधिक और विशेष है। हमारे सनातन धर्म में विविध प्रकार के संप्रदाय है, विविध प्रकार की प्रणाली है, विविध प्रकार की साधना पद्धति है और विविध प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं। लेकिन इन सब पद्धतियों में, इन सब संप्रदायों में, इन सब प्रणालियों में भगवान शिव का स्थान ये सबसे विशेष है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति और जीव के घटनाक्रम के सर्जन विसर्जन और संहार का मूलभूत केंद्र भगवान आदिनाथ को ही माना गया है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो पहले पुरुष हुए, वो पहले पुरुष, आदि पुरुष, वो आदि पुरुष ही भगवान शिव है। और पृथ्वी की जो पहली शक्ति, जो पहली स्त्री उत्पन्न हुई, वो आदि माया, वही पार्वती है। यानी शिव और पार्वती के मिलन से यह जीव सृष्टि की उत्पत्ति की क्रिया, जीवन की क्रिया और संहार की क्रिया होती है। और इसीलिए भगवान शिव को सांब सदाशिव भी माना गया। शिव और पार्वती जहाँ एक रूप हो जाते हैं, ऐसे निराकार स्वरूप को सांब सदाशिव का स्वरूप कहते हैं। शिव और पार्वती जहाँ सगुण स्वरूप में एक रूप होते हैं, चित्र स्वरूप में एक रूप होते हैं, ऐसे स्वरूप को सांब सदाशिव का स्वरूप कहते हैं। और वही सांब सदाशिव के स्वरूप से इस जगत की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव जब लिंग स्वरूप हो जाए, निराकार स्वरूप हो जाए, और मां पार्वती योनि स्वरूप हो जाए, वह निराकार स्वरूप को, जगत की उत्पत्ति के अदृश्य स्वरूप को शिवलिंग कहा जाता है। यानी शिवलिंग की आकृति शिव और पार्वती की निराकार एक रूप आकृति है और शिव और पार्वती का चित्र जगत की उत्पत्ति के लिए सांब सदाशिव का एक सगुण चित्र है। इसलिए साकार रूप में, निराकार रूप में, आप जिस रूप में भजे, हम योगानुयोग भी वैश्विक शक्ति की ही पूजा करते हैं। इसलिए लिंग की पूजा विश्व पूजा है और जो जीव आज शिवलिंग की पूजा करे, भगवान शिव का ध्यान धरे, उसे अपने जीवन में मुक्ति मार्ग प्राप्त होता है। और यही मुक्ति मार्ग की प्राप्ति के लिए हम सब किसी ना किसी रूप से भी प्रवृत्तिशील है। अब हम सोचेंगे कि हम क्यों प्रवृत्तिशील है, क्यों हम मुक्ति मार्ग की ओर ही जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमने संसार रचाया, हमारी संततियां पैदा हुई,
हमारा परिवार हुआ, बाद में भी हमारे जीवन को अभी भी किसी सांत्वना की, किसी सुख की या किसी संतोष की तलाश है। हम कहीं ना कहीं जीवन में अधूरे हैं। इसीलिए प्रति मिनट कोई ना कोई आयोजन हमारे जीवन में होता है। वह प्रत्येक आयोजन के पीछे शांति और सुख। तो शांति और सुख के लिए जितने भी आयोजन आज हम करते हैं, और उसका एक ही कारण है कि हमें अभी भी जीवन में तृप्ति नहीं मिली, और जब तक हमें तृप्ति नहीं मिली, स्वाभाविक है हमारे जीवन में वहां से हमें मुक्ति नहीं मिली। आपको पानी की प्यास लगे, आप पानी पीते हैं, 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, भरपूर पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद भी स्वाभाविक रूप से 2-3 घंटे के बाद वापस प्यास लगती है। हम कहीं भी घूमते हो, पानी के पास, पानी के गिलास के पास, पानी की परब के पास हम पहुंच जाते हैं, वापस पानी पीते हैं, वापस हम उसे भूल जाते हैं। वही क्रिया दिन में कई बार होती है, जीवन में कई बार होती है। मानो पानी पिया, संतोष हुआ, लेकिन ऐसा संतोष नहीं हुआ जिसे तृप्ति कहा जाए। और ऐसा संतोष जहां हुआ नहीं है, इसलिए बार बार स्वाभाविक रूप से हमें प्यास लगती है। लेकिन मानो कि हमें तृप्ति मिल जाए, संतोष से भी ऊपर हमें पानी से तृप्ति मिल जाए, तो पानी से जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। हम कभी पानी पीने की इच्छा नहीं करेंगे। यानी पानी हो, खाना हो, हमारे जीवन की इच्छाएं हो, हमारे जीवन के लिए साधन और सुविधाएं हो, या कुछ भी हो, हमारे सांसारिक जितने भी मनोरथ हो, उसे हमें संतोष मिलता है, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। अगर हमें वहां से तृप्ति मिल जाए, तो वहां से मुक्ति हमें मिल जाती है, वो वस्तु हमारी वहां से छूट जाती है। इसलिए भगवान शिव की उपासना हमारे जीवन में हमें तृप्ति से मुक्ति की ओर ले जाती है। और जहां हमें मुक्ति मिले, वहां स्वाभाविक रूप से आत्मा का धर्म बन जाता है, आत्मा का स्वभाव बनता है कि वो मोक्ष को पा जाए। एक बार एक राजा अपने ही जंगल में कहीं दूर शिकार के लिए निकला। राजा ने शिकार किया, शिकार करते हुए पूरे जंगल को देखा। राजा की नज़र में एक झोपड़ी राजा को दिखी। वो झोपड़ी देखने के बाद राजा ने मन में सोचा कि वहां कौन रहता है। राजा ने तपास कराई, पता चला कि वहां कोई साधु सन्यासी रहते हैं और संसार से नीलेप अपना जीवन जीते हैं। जो कुछ उनके पास है उसमें से उनका जीवन क्रम चलता है। राजा ने सोचा कि मैं इतने बड़े राज्य का राजा हूं, मेरी जनता को मैं खाना पीना व्यवस्था ये सब मैं देता हूं, फिर भी ऐसे घनघोर जंगल में कोई साधु सन्यासी झोपड़ी बना के रहे, स्वाभाविक है कि वहां तक मेरी व्यवस्था पहुंचती नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत खराब है, मेरे लिए दुख की बात है कि मैं सभी का पोषण कर लेता हूं, मेरी पूरी जनता का पोषण कर लेता हूं, मेरे राज्य की सीमा में जो जो आए उसका मैं पोषण करता हूं, लेकिन ये साधु की झोपड़ी मेरी व्यवस्था से बाहर है। राजा को मन में दुख होने लगा। राजा ने सोचा कि चलो आज एक आध दिन में निकाल के वो साधु की झोपड़ी पे जाऊंगा, उसकी परिस्थिति देखूंगा,
और उसकी गरीबी देखते हुए उसे जितनी मदद की जाए उतनी मैं करूँगा। एक दिन राजा ने पूरा आयोजन किया, अपने लश्कर के साथ राजा उस साधु की झोपड़ी पे साधु को मिलने के लिए चला। राजा साधु की झोपड़ी पे मिलने के लिए आ रहे हैं। साधु को संदेशा भिजवाया। साधु महाराज राजा के स्वागत के लिए दरवाजे तक आए। राजा आते हैं, राजा का स्वागत किया जाता है। साधु अकेले झोपड़ी में रहते थे। साधु ने स्वागत किया, राजा को अंदर बुलाया, आसन पे बिठाया, राजा का सत्कार किया। जब राजा का सत्कार हो रहा था झोपड़ी में अंदर, तब राजा ने सजा सज किया कि हे महाराज, मैंने आपकी झोपड़ी देखी थी और तब से मेरे मन में था कि आप कितने दुखी होंगे। मैं मेरी पूरी प्रजा का पोषण करता हूं, आप तक मैं नहीं पहुंच पाया। आज आपकी मैं झोपड़ी देख के मुझे लगता है कितनी गरीबी में आप जीते। सन्यासी कुछ बोले नहीं। सन्यासी ने आसन दिया, बिठाया। आसन भी बैठने के लिए दिया। एक टूटा हुआ एक छोटा सा एक मेज था, उसके ऊपर बिठाया। राजा ने वो देखा। राजा ने वापस कहा कि अच्छा हुआ मैं यहां आया। अब कैसी स्थिति में है, आपके पास बिठाने के लिए, बैठने के लिए एक अच्छा फर्नीचर भी नहीं है। कितने गरीबी है आप, मुझे बहुत दुख होता है। महाराज कुछ बोले नहीं। राजा के लिए महाराज ने कुएं में से जाके पानी निकाला और पत्ते के बर्तन में, पत्ते के पात्र में राजा को पानी दिया। राजा के पास पानी पहुंचा। राजा ने पानी पिया। थोड़ा पानी तो उसमें से निकल गया, क्योंकि राजा को आदत नहीं है पत्ते के पात्र में पानी पीने की। वापस राजा ने कहा कि हे भगवान, मेरे राज्य में इतनी गरीबी कि मेरे राज्य में रहने वाले एक साधु के पास पानी पिलाने के लिए एक बर्तन भी नहीं है। बहुत दुख होता है मुझे। सन्यासी कुछ बोले नहीं। सन्यासी ने राजा के सत्कार के लिए फलाहार की व्यवस्था की। जो भी फल थे वो लाए, काटे, जो कुछ था तुरंत 5-10 मिनट में आजू बाजू से सब इकट्ठा किया और फलाहार राजा को दिए। फलाहार खाते खाते वापस राजा ने कहा कि महाराज आप कैसे जीते हो, हमारे राज्य में तो इतनी अन्न व्यवस्था है, मुझे बहुत दुख होता है कि इतनी गरीबी में आप कैसे जीते हो। फिर भी सन्यासी कुछ बोले नहीं। राजा से थोड़ी बातचीत हुई। राजा के लिए एक वस्त्र लाया गया। वो पेड़ का जो छिलका होता है उसकी छाल से ऋषि ने एक वस्त्र बनाया था। वो वस्त्र राजा को उपवस्त्र के रूप में राजा को पहनाया। राजा ने वापस कहा कि हे महाराज, ये आपने जो मुझे पहनाया इसमें तो बहुत ठंडी लग सकती है, इसमें गर्मी भी बहुत लगती है। ये जो वस्त्र है उसका बंधारण ही ऐसा है, इसमें छिद्र इतने हैं कि किसी भी ऋतु में ये शरीर का रक्षण नहीं कर पाता। तो मुझे बहुत दुख है कि आपके पास तो इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी में आप जीते हो, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। सन्यासी कुछ बोले नहीं। राजा ने मन से सोचा कि सन्यासी को संकोच हो रहा है और मैं राजा हूं, स्वाभाविक है उसे डर लगता है, उसे संकोच होता है, इसलिए नहीं बोलते। तो क्यों नहीं मैं ही सामने से बोल दूं। राजा ने कहा देखो महाराज, संकोचवश आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आप चिंता न करें, बहुत जल्दी आपकी झोपड़ी वो बड़े भवन में मैं परिवर्तित कर दूंगा। आपको वस्त्र की कमी, अन्न की कमी नहीं रहेगी, सब हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ चाहिए तो आप बोले, आपकी गरीबी मैं दूर कर लूंगा। इतना जब बोले तब वो संत महात्मा हंसे। राजा ने कहा आप हंसते क्यों। तब संत महात्मा ने कहा कि मैं जब से राजा आप आए हो
बार बार मैं गरीब हूं, मेरी गरीबी के बारे में आप बोलते हो कि आपके पास बैठने के लिए कुछ नहीं, आप कितने गरीब है, खाने के लिए खिलाने के लिए कुछ नहीं, कितने गरीब है, पानी पिलाने के लिए कुछ नहीं, कितने गरीब है, पहनाने के लिए ओढ़ाने के लिए कुछ नहीं, आप कितने गरीब है, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। कब से मैं देख रहा हूं, अब मेरी गरीबी के बारे में बोलते जा रहे हो कि आप गरीब हो, गरीब हो, गरीब हो। लेकिन हे राजन, मुझे आप कहिए कि मैंने कहा कि मैं गरीब हूं? मैंने आपको कहा कि मेरे पास ये सब नहीं है, मुझे आप दीजिए? और उससे भी आगे चल के मैं कहता हूं, आप मुझे कब से कह रहे हो आप गरीब हो? मैं आपके दरवाजे पर नहीं आया, आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम गरीब हो। सन्यासी ने जवाब दिया। राजा सोच में पड़ गया कि सन्यासी की बात तो सही है। सन्यासी ने नहीं कहा मैं गरीब हूं, सन्यासी ने नहीं मांगा कि मुझे ये वस्तु चाहिए, और मैं सामने से आया हूं, सन्यासी थोड़ी है। बाद में सन्यासी ने कहा कि जो याचक होता है वो सामने से आता है, जो दाता होता है वो कभी जाता नहीं, याचक आता है मांगने के लिए। तो मैं राजा तुम्हें कहता हूं, तुम्हारी अगर कोई गरीबी है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें अमीर कर दूंगा। राजा बोले, राजा सोचने लगे कि मेरे पास धन संपत्ति है, मैं कैसे गरीब हो सकता हूं? तब सन्यासी ने कहा कि गरीबी और अमीरी ये वस्तु, स्थिति, धन संपत्ति, परिस्थिति से नापी नहीं जाती। गरीबी और अमीरी मन में संतोष असंतोष की अवस्था से नापी जाती है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है फिर भी मैं तृप्त हूं। तुम्हारे पास सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद भी राजा तुम असंतोषी हो। तुम अपने राज्य के लोगों के पास से तुम कर वसूली करते हो, दूसरे राज्यों के ऊपर चढ़ाई करके दूसरा राज्य तुम लेते हो। तुम्हारा जो खजाना भरता है लोगों के लहू को चूसते हुए बनता है। इतना सब होने के बाद भी राजा तुम गरीब हो, और तुम मांग मांग करते हो, तुम युद्ध करते हो, तुम प्रजा के ऊपर, तुम प्रजा का शोषण करते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं अमीर हूं, क्योंकि मैं सभी वस्तुओं से मैं तृप्त हो चुका हूं। मेरे खाने में भी तृप्ति है, मुझे भूख भी नहीं लगती, जो मिले उसमें मैं खा लेता हूं, तृप्त हो जाता हूं। मुझे ये ऋतुओं का भी बंधन नहीं है, मेरा शरीर सभी ऋतुओं में समभाव में जीता है। हर प्रकार की वस्तुओं से मुझे तृप्ति है, इसीलिए मैं अमीर हूं, तुम गरीब हो। अगर तुम्हें अमीरी चाहिए तो थोड़े दिन मेरे साथ रह लो, मैं भी मेरे जैसा अमीर तुम्हें बना सकता हूं। अब आप सोचिए कि साधु सन्यासी जो भी थे उनको तृप्ति मिल चुकी थी। तृप्ति मिल चुकी थी तो साधनों की आवश्यकता नहीं थी। मुझे वस्तुओं से तृप्ति मिल जाए तो साधनों की आवश्यकता क्या? आपकी जेब में 10 रुपये हो, उस 10 रुपये से आपको अगर तृप्ति है तो 100 रुपये की आवश्यकता क्या है? रहने के लिए झुपड़ी है, झुपड़ी से आपको तृप्ति है तो घर की आवश्यकता क्या? अगर आपके पास घर है और घर से आपको तृप्ति है तो भवन की आवश्यकता क्या? आपके पास भवन है, भवन से आपको तृप्ति है तो महल की आवश्यकता क्या है? महल आपके पास है और महल से तृप्ति है तो बड़ा राज दरबार बनाने की आवश्यकता क्या है? एक वस्त्र से अगर तृप्ति हो जाती है तो 10 कपड़े खरीदने नहीं पड़ते। तो शिव पूजा हमारे जीवन से हमें तृप्ति देता है। शिव पूजा से जहां तृप्ति हो जाए वहां हम जितनी वस्तु मांगने के लिए भगवान के सामने बैठे हैं उन सभी वस्तुओं से मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हर गुरुवार को आप सब आते हैं
बस में बैठ के आते हैं, ट्रेन में बैठ के आते हैं, गाड़ी से आते हैं, सब अपना मैनेजमेंट करके आते हैं। पूरे दिन की मिनट मिनट आप सेटिंग करके आप आते हैं। जहां से भी आप दौड़ते हुए आते हैं, ट्रेन नहीं छूट जाए, बस नहीं छूट जाए, आप दौड़ते हुए अपनी सर्विस में होते हैं फिर भी आते हैं, घर में होते हैं फिर भी आते हैं। कहीं स्कूल में जाते हैं लड़के, वो सीधे यहाँ आते हैं। लेकिन यहां जब आते हैं, सबसे पहले आपकी इच्छा क्या होती है? आपको तृप्ति कहां से मिलती है? सबसे पहले सबकी तृप्ति भोजन से नहीं, गुरु के दर्शन से हो जाती है। तो जहां दर्शन से जहां आप आते हो और दर्शन से तृप्ति हो जाती है, तो बाद में भोजन करो ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, आप पहले आके भोजन कर लो और मैं आपको कहूं भोजन हो गया जाओ, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, भोजन हो गया, हम बैठेंगे, दर्शन के बिना हम नहीं जाएंगे। तो अब सोचिए कि बहुत कुछ मन में रख के आए हैं, बहुत कुछ मांगने के लिए आए हैं, लेकिन जहां दर्शन हो जाते हैं वहां तृप्ति हो जाती है। तो जो वस्तु मांगने के लिए है वस्तु वहां छूट जाती है, वस्तु से मुक्ति मिल जाती है। जो मन में कामना है वो कामना वहां से छूट जाती है, वहां से प्यास भी चली जाती है, वहां से भूख भी चली जाती है। तो दर्शन मात्रेण तृप्ति, कि सिर्फ दर्शन करने से अगर तृप्ति मिल जाती है तो स्वाभाविक है कि हमें भूख नहीं लगती, हमारी मनोकामना वहां से छूट जाती है, हम खाने के लिए भी नहीं रुकते, दर्शन करके हम चले जाते। तो ये तो हमारा हर रोज के गुरुवार का नियम है कि हमें सिर्फ दर्शन मिल जाए, तृप्ति मिल जाती है, बाकी सब वस्तुओं से हमें मुक्ति मिल जाती है, हमारे मन को एक आयाम प्राप्त हो जाता है। तो शिवरात्रि का अर्थ भी यही है कि शिवरात्रि के दिन आप कुछ मांगने के लिए पूजा न करें, क्योंकि जो मांगने वाला होता है उसे कभी भगवान कुछ देते नहीं। शिवरात्रि के दिन आप मांगने के लिए पूजा न करें, शिवरात्रि के दिन आप कुछ छोड़ने के लिए पूजा करें। आज का दिन तृप्त होना है और किसी वस्तु से मुक्त होना है। आप यहां जो भी कुछ चढ़ाते हो, ये जब आप चढ़ाते हो तब मन से माने कि जहां जहां हमारी मोह माया है ये मोह माया छूटे। कुछ छोड़ने के लिए पूजा की जाए, मांगने के लिए नहीं। अगर आप कुछ छोड़ने के लिए आज के दिन पूजा करेंगे तो भगवान जो आपके लिए सही है वो सब भगवान आपको देते हैं। और इसलिए आज की पूजा तृप्ति से मुक्ति और मुक्ति से मोक्ष की ओर जाने का एक प्रयाण है, इसीलिए उसे शिवरात्रि कहा गया है। जीव जब पूजा करे और वो तृप्त हो जाए, सभी कामनाओं से मुक्त हो जाए, तो वही जीव शिव भाव में चला जाता है। जीव का जहां शिव भाव में परिवर्तित होना, ये अवस्था ही होती है मोक्ष। यानी आज के दिन पूजा करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन वो आज के आज नहीं मिलता। आज के दिन पूजा करने से जीवन के अंत समय में मोक्ष मिलता है। नहीं तो हम सोचेंगे आज ही पूजा की तो आज ही मोक्ष मिल जाए, नहीं। आज के दिन तो टिकट रिजर्वेशन का दिन, आपकी सीट रिजर्वेशन करनी है। તમે કશે પણ પ્રવાસ માટે જવાના હોય અને જો ધક્કામુક્કી કરીને તમારે નહીં જવું હોય ને શાંતિથી બેસીને જવું હોય તો તમારે મહિના પહેલાં રિઝર્વેશન કરાવવું પડે। તમારે જેને ફર્સ્ટ ક્લાસ ફાવતો હોય તે ફર્સ્ટ ક્લાસમાં કરાવે, જેને પાસ ક્લાસ ફાવતો હોય તે પાસ ક્લાસમાં કરાવે, તે રિઝર્વેશન કરાવે અને મહિના પહેલાંથી તમારું રિઝર્વેશન फाइनल, પછી वेटिंगમાં આવે। रिजर्वेशन वेटिंग में हो जाता है पहले, और बाद में वेटिंग के बाद जब टाइम आता है 2 दिन पहले, बाद में आपको वेटिंग चला जाता है, बाद में आप रिजर्वेशन आपको मिल जाता है, कंफर्म हो जाता है। बाद में आप सीधे डिब्बे में जाते हो, अपनी टिकट जहाँ है उस सीट के पास जाते हो और सीट के ऊपर जो बैठा है उसे दिखा देते हो, भाई मेरा रिजर्वेशन है, उठो। और जब रिजर्वेशन करते हो तो विंडो सीट हम ज़्यादा लेते हैं कि विंडो सीट चाहिए। यानी अगर विंडो सीट चाहिए, आपको सीट चाहिए, कोई आपकी सीट के ऊपर बैठे नहीं, ऐसा रिजर्वेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, तो
तो 1 महीने पहले करवाना पड़ता है। ठीक जीवन के अंत भाग में आपको मोक्ष चाहिए, जीवन के अंत भाग में आपको समाधि चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, जीवन के अंत भाग में आपको आनंद से जाना है, तो आपको आज से उसका रिजर्वेशन करना पड़ेगा। जब सरकारनी ट्रेનમાં જવું હોય તો મહિના પહેલાં ચાલી જાય, પણ ભગવાનની ફ્લાઇટમાં જવું હોય તો દર વર્ષની શિવરાત્રિએ તમારે રિઝર્વેશન કરવાનું. હે ભગવાન, મને મોક્ષ જોઈએ છે, આ રિઝર્વેશન. વિન્ડો સીટ મળે એટલે જતાં જતાં બધાને હાથ કરતો જાઉં એમ. બારી વિન્ડો સીટ કેમ લઉં કે બારીમાંથી બધાને હાથ કરવા મળે, હવા મળે, કે હું જાઉં ને ત્યારે મારા છોકરા, છોકરાના છોકરા, એના છોકરા, અને એ પણ તો છોકરાના છોકરા, એના છોકરા બી જો થવાની તૈયારીમાં હોય તો 9 મહિના કરતાં બી વહેલા થઈ જાય તો ચાલે. પણ બધાને જોઈને જાઉં, બધા પરિવાર મારી હાથે હોય, બધાને હાથે ખાવું, પીવું, બેસવું, અને બધાને કંઈક કહેતો 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 પછી છેલ્લે ઉપડી જાઉં. આને કહેવાય વિન્ડો રિઝર્વેશન. એવું જો તમને રિઝર્વેશન જોઈતું હોય તો પછી આજથી જ તમારે લાગવું પડે. શિવલિંગ ઉપર પાણી ચડાવવું પડે, શિવલિંગને બિલીપત્ર ચડાવવા પડે. આજથી જ તમારે નક્કી કરવું, આજે ઉપવાસ કરવો પડે. આજથી જો તમે એ વસ્તુનું કન્ફર્મેશન, આજથી રિઝર્वेशन करो, आज अगर करेंगे तो इतना ध्यान रखना, जीवन के अंत समय में जब आपका समय आएगा तो आपको समाधि अवस्था, मोक्ष अवस्था जो भी है, आप राजी खुशी, हंसी खुशी आप सब छोड़ते हुए जाएंगे. इसीलिए, और जब हम छोड़ेंगे तो वही विश्व में हम विलीन हो जाएंगे. इसीलिए आज की पूजा ये महत्व की पूजा है. शिव पूजा ये ऐसी विश्व पूजा है कि यह पूजा तभी सार्थक होती है कि पूजा करने के बाद आपका हृदय परिवर्तन हो. हम सब पूजा करते हैं, लेकिन हमारा हृदय परिवर्तन होता है अलग प्रकार से होता है. हमारे अंदर अभिमान हो जाता है, इतना बड़ा मैंने यज्ञ किया, आटलो कुंडी यज्ञ कर्यो, अभिमान. आटला ब्राह्मणोने जमाड्યું, अभिमान. आटलाने दान आप्યું, अभिमान. राजा શું करतो હતો? राजा क्या करता था कि राजा पूरे नगर के सभी ब्राह्मणों को राजा भोजन देता था, मैंने खिलाया. सभी को दक्षिणा दी जाती थी, मैंने दक्षिणा दी. मैं चक्रवर्ती सम्राट, सबको कुछ न कुछ देता था. एक अहंकार. और राजा के अहंकार से तो आया है कि राजोपचार पूजा, पंचोपचार, 16उपचार, 30उपचार और राजोपचार पूजा. राजोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा में 5 द्रव्य. आज जो यहाँ हुई वो पंचोपचार पूजा. पंचोपचार पूजा में 5 द्रव्य. 16उपचार पूजा में 16 द्रव्य, 16 प्रकार की वस्तु. 30उपचार पूजा में 30 प्रकार की वस्तु. और राजोपचार पूजा में दुनिया की सभी वस्तु. राजा जो जो ला सकता है वो आप लाइए, वो राजोपचार पूजा. जितनी बड़ी पूजा उतना बड़ा अहंकार, जितनी बड़ी प्रतिष्ठा उतना बड़ा अहंकार. और इतने बड़े अहंकार से जब हम पूजा करें तो पूजा से हृदय परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन हमारा हृदय अभिमान में परिवर्तित हो जाता है. हमारा हृदय किसी और के लिए, द्वेष के लिए परिवर्तित हो जाता है कि भगवान मैं तेरी पूजा करूं, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, मुझे जो दुखी करे उसको तुम सबक देना. ये कौन सा परिवर्तन है? घણા ભગત ભુવા પાસે નથી જતા. આજે ભગત ભુવા પાસે જાઓ છો, તમે આ જ આવે છે કે જો નહીં મને એમ કે આ કોણે કંઈ કર્યું છે, દાણા નાખીને જુઓ. પેલાની વિદ્યા હોય એટલે જોઈ કે હા આજુવાલીએ કર્યું છે, બાજુવાલીએ કર્યું છે. હવે તારે કોઈ ચિંતા નહીં કરવાની, મને તું આટલી આટલી વિધિ કરાવી જા, હું એને ઠેકાણે પાડી દેવા, પતી ગયું. ये बड़ी पूजा अपने ठिकाने पड़वा मत करे. तंत्र, तांत्रिक पूजा वो किसी को नुकसान के लिए ही होती. मुझे जो नुकसान करे भगवान तुम उसका नुकसान करो. हाँ, आप ये मांग सकते हो, हे भगवान मेरा रक्षण करे, ये बात ठीक. रक्षण हर कोई मांग सकता है, आपका अधिकार है, जीव का अधिकार है, संरक्षण ले, वो हर कोई मांग सकता है. हे भगवान मेरा रक्षण करो. सुख हर कोई मांग सकता है, हे भगवान मैं सुखी रहूं, मांग सकते हैं. लेकिन मैं सुरक्षित रहूं और दूसरे को कुछ हो जाए, ये नहीं मांग सकते.
मैं सुखी हो जाऊं और दूसरों का सुख मुझे मिल जाए, ये नहीं मांग सकते। हृदय परिवर्तन द्वेष में नहीं होना चाहिए, हृदय परिवर्तन अभिमान में नहीं होना चाहिए, हृदय परिवर्तन किसी लालच से नहीं होना चाहिए कि ये भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतना चढ़ा दूंगा। ये लालच से हृदय परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं तेरी पूजा करूं, मेरा पुण्य बढ़ना चाहिए, पुण्य के लालच से भी हृदय परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हृदय परिवर्तन जब होता है तब हृदय नहीं रहता। हृदय परिवर्तन हो जाता है तब वही हृदय में करुणा जन्म लेती है। हृदय के दया भाव जब करुणा भाव में चले जाए, वो करुणा भाव सबसे बड़ा हृदय परिवर्तन है। वहां पश्चाताप होता है। और जहां हृदय परिवर्तन करुणा भाव में चला जाए वहां सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। सबके कल्याण की भावना वहां आ जाती है। उसे कहता है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। करुणा अवतार, भगवान करुणा अवतार है, वो सबका सोचते हैं। हमने कुछ कहा और भगवान ने किया नहीं तो हमारा नहीं, वो सबका सोचते हैं। तो वो करुणा अवतार है। हमारा हृदय करुणा अवतार होना चाहिए, करुणा में परिवर्तित हो जाना चाहिए कि मेरे लिए क्यों, भगवान सब सुखी रहे। सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामय, कि सब तंदुरुस्त रहे, सब सुखी रहे। उसमें मेरे शत्रु भी आ जाए, भविष्य में होने वाले शत्रु भी आ जाए, भविष्य में होने वाले मेरे मित्र भी आ जाए, मैं जिसे जानूं न जानूं सब आ जाए, पशु पंखी पेड़ पौधे सब उसमें आ जाए। तो हृदय परिवर्तन वैश्विक होना चाहिए। और जहां वैश्विक भाव से हृदय परिवर्तन जहां हो जाता है, वह पूजा आपकी सफल होती है, सबको मिलता है। आपके द्वारा सबको, बरसात गिरती है सबको मिलता है। तुम्हें वरसाद પડે ત્યારે તમે જોજો કે ભગવાન વરસાદ પાડે તો બધાના ખેતરમાં પાડે, એને બહુ માને તેનામાં પાડે ને જે નથી માનતો તેના ખેતરમાં વરસાદ નહીં પડે એવું થોડું છે। जब आप फसल उगाते हो तो सबके खेत में समान उगती है, सूर्य का प्रकाश सबको समान मिल जाता है। वैसे वैश्विक रूप से जहां हृदय परिवर्तन वहां हो जाए, वो आपके साथ साथ सबको मिलता है। और इसलिए जब आपने नवनाथ चरित्र पढ़ा होगा तो नवनाथ चरित्र में फलश्रुति आती है, उसमें आता है कि ये अध्याय के श्रवण पठन से आपकी 72 पीढ़ी तैर जाएगी। ये आता है कि नहीं आता? तुम्हारी 72 पीढ़ी तरी जाए, तुम्हारा कूड़ तरी जाए। ये कहाँ से आता है? 72 पीढ़ी में हो गया कि आपके आगे जितने थे, पीछे जितने थे और आपके साथ जितने हैं, ये सब विश्व एक कुटुंब है। आप आपकी वंशवाली ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी से तो संबंध में मिलेंगे। તમે જુઓ, કોઈનો સંબંધ કાઢો તો એ સંબંધ જો કોઈનામાંથી જતો ગમે ત્યાં એ સંબંધ પાછો આપણો મળે જ। દરેક જણા આપણે એકબીજાના સગા છે। મારા ફેમિલીમાંથી જો હું સંબંધ કાઢતો જાઉં તો એ કશે ને કશે આડો અવળો થતો તમારા સુધી પહોંચશે, ગમે ત્યાં સુધી પણ એ પહોંચશે। દરેક જણા એકબીજાના સગા છે। तो 72 पीढ़ी तड़ जाए, पूरा कुल तारक हो जाए आप, उसका अर्थ है सबका उसमें हो जाए, आप अकेले नहीं। लेकिन वहां लिखा जाए कि सबके लिए मांगो तो नहीं मांगेंगे, इसलिए आपके लिए लिखा गया है आपका कुल तैरेगा। તમારી 72 પેઢી તરશે એટલે તમને એમ થાય કે અમારા પૂર્વજ તરી જાય, અમારું કુળ તરે એટલે એમ થાય કે અમારા બધા તરી જાય। પણ ખરેખર એવું નથી, ઓલ ઓવર બધું જ આવે છે, વિશ્વ આખું જ એની અંદર આવી જાય છે। तो हृदय परिवर्तन ऐसा हो कि जो वैश्विक रूप से हो। आज आपने कोरोना काल देखा होगा, कोरोना काल में क्या होता था? कोरोना काल में आपने दोनों चीजें देखी होगी कि जो आध्यात्मिक थे, जो धार्मिक थे, तो दूसरों के लिए भी कुछ करते थे, और जो आध्यात्मिक नहीं थे, धार्मिक जो अपना सोचते थे, वो घर बंद करके घर में बैठते थे। बड़ी बड़ी संस्थाएं भी ऐसी निकली थी, लेकिन कई संस्था ऐसी थी जिसने लोगों को सामने आके बांटा, सामने आके सहाय की। और कई बड़ी बड़ी संस्थाएं ऐसी थी जो घर में बैठी रही। कई परिवार ऐसे थे जो सामने आके सब किया। ऐसा नहीं भोजन खिलाया, कहाँ कहाँ से लोग निकल पड़े थे, वहां वहां लोगों को पहुंचाया, ऐसे भी लोग थे उसमें। तो ये क्या था?
ये जो भी कुछ था, ये बहुत बड़ा परिवर्तन, जो परिवर्तन होने से हमारे जीवन का कल्याण होता है, ऐसा परिवर्तन शिव पूजा से आता है, तभी आपकी पूजा सार्थक हो जाती है। और इसलिए शिवरात्रि के दिन आपका हृदय परिवर्तन वैश्विक रूप से हो, ये बहुत जरूरी है। एक पारधी था, वह पारधी पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पोषण करता था। एक दिन पूरे जंगल में घुमा, उसे कुछ मिला नहीं। उसके परिवार ने कहा कि आज कुछ भी करो, जाओ, 2 दिन से तो खाना खाया नहीं, कुछ भी शिकार मिले तो लेके आओ। पारधी निकल पड़ा, पूरे दिन जंगल में ढूंढा, कुछ मिला नहीं। संध्या काल हो गई, सोचा कि आज तो घर कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा। वो पारधी किसी पेड़ के ऊपर चढ़ गया, अंधेरा था, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ा। वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा, आजू बाजू देखा तो पानी का सरोवर था, वहाँ से थोड़ा पानी पिया और थोड़ा पानी लिया। वो लेने के बाद वापस वो पेड़ पे चढ़ा, और कोई शिकार आएगा उस शिकार की राह में वो बैठा रहा। योगानुयोग रात्रि का प्रथम प्रहर चालू हो गया। 8 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे का एक प्रहर। तो रात्रि का प्रथम प्रहर चालू हुआ सूर्यास्त के बाद का। प्रथम प्रहर हुआ, उसने देखा कि पानी के सरोवर में से कुछ आवाज आ रही है, कोई पानी पी रहा है। देखा तो एक हिरनी थी, हिरनी पानी पीती थी। तुरंत उसने अपनी धनुष बाण निकाला, प्रत्यंचा चढ़ाई, उसके ऊपर धनुष रखा, तीर रखा। वहाँ हिलचाल हुई। जैसे वहाँ हिलचाल हुई, वो जिस पेड़ के ऊपर बैठा था उस पेड़ से थोड़े पत्ते नीचे की ओर गिरे। अब ये योगानुयोग था कि वो जिस पेड़ पे बैठा था वो बिलीपत्र का पेड़ था, और जहाँ पत्ते हिले और जो पेड़ के ऊपर से पत्ते गिरे नीचे, एक पत्थर का शिवलिंग था, अपूज्य शिवलिंग। योगानुयोग प्रथम प्रहर में उसके द्वारा वो पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिरे। सामने उसने धनुष बाण ताका, हिरनी ने देखा, उसने कहा हिरनी को, सावधान, मैं तुम्हारा वध करूंगा। हिरनी ने कहा तुम मेरा वध करना क्यों चाहते हो? उसने कहा मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है, तुझे मारूंगा, ले जाऊंगा, हम खाना खाएं। हिरनी ने कहा कि तुझे मारना हो तो भले मुझे मार, लेकिन मेरी एक विनती है, वो सुन। क्या? तो मैं मेरे घर में मेरे छोटे बच्चे को रख के आई हूं, मेरे 2 छोटे बच्चे, उसको मैं बिना कहे आ गई हूं। एक बार जाके उसे मुझे मिल लेने दो, मैं मेरी छोटी बहन और मेरे पति को मेरे बच्चे में सौंप दूं, बाद में मैं आती हूं, बाद में मुझे मारना, थोड़े समय के लिए मुझे जीवोद्दान दो। वो पारधी ने सोचा कि ये पशु है, इसके पर कौन भरोसा करे। पारधी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो हिरनी ने कहा मेरे बच्चे की सौगंध खाती हूं। पारधी के अंदर थोड़ी दया जन्मी, जो शिवलिंग के पत्ते गिरे थे उसमें से थोड़ी दया नीचे से ऊपर आई। भगवान का एक साक्षात्कार हुआ, कुछ हृदय परिवर्तन, 4 बिलीपत्र गिरने से हृदय परिवर्तन, योगानुयोग। ठीक है, चलो बच्चे की सौगंध खाती है तो मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन आ जाना। हाँ, मैं आ जाऊंगी। हिरनी गई। काफी समय हुआ, वो बिलीपत्र के पेड़ के ऊपर बैठ के टहलियाँ तोड़ता था, समय पसार करने के लिए फेंकते जाता था। उसे पता नहीं था नीचे क्या था, वो फेंकता था। योगानुयोग शिवलिंग के ऊपर बिलीपत्र गिरते थे। रात्रि का एक प्रहर खत्म हुआ, दूसरा चालू हुआ। दूसरा प्रहर चालू हो गया, एक दूसरी हिरनी आई, पानी पीने लगी। उसने सोचा यही होगी, इसलिए उसने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष लाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाया, मारने के लिए गया। हिरनी भागने के लिए गई, उसने आवाज लगाई, भागना मत, मैं मार दूंगा। तब हिरनी ने कहा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तब उसने कहा कि मैं घर के लिए तुझे ले जाना चाहता हूँ, मार के खाना खाना चाहते हैं, हम भूखे हैं घर में। एक बार तो तू चली गई और वापस भागना चाहती है। हिरनी ने कहा वो मैं नहीं थी, वो कोई और होगी, लेकिन मैं तुम्हें इतनी प्रार्थना करती हूँ
कि मैं मेरी बहन को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई थी, मेरी बहन नहीं मिली, मैं घर पे जाती हूँ, मेरी बहन के बच्चे वहाँ है, मेरा पति भी है, तो मैं उसको मिलती हूँ, व्यवस्था उन्हें सौंपती हूँ और बाद में मैं आती हूँ। तो बोले मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो हिरनी ने कहा कि मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ, मुझे जाने दो। उसे जाने दिया, जाओ। वापस दूसरा प्रहर खत्म हुआ, तीसरा प्रहर चालू हुआ। इंतजार करते करते पत्ते फेंकता है नीचे, शिवलिंग के ऊपर पत्ते योगानुयोग गिरते हैं, और साथ में जो ऊपर पानी लेके गया था, पानी पीता है। वो पानी जिसमें लेके गया है वो बर्तन जैसे हिलता है, वैसे उसमें से जो पानी पड़ता है वो भी शिवलिंग के ऊपर पड़ता है। योगानुयोग जलाभिषेक होने लगा। एक हिरन आया, हुष्टपुष्ट हिरन आया, खड़ा रहा, पानी पीने लगा। शिकारी को लगा ये बहुत बड़ा शिकार है। शिकारी ने वापस धनुष लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, तीर लगाया और मारने के लिए तैयारी की। हिरन चालाक था, हिरन ने देखा। हिरन ने कहा मेहरबानी करके मुझे मत मारना। तो बोले क्यों नहीं मारूं मैं तुझे? नहीं मुझे मत मारना। नहीं मैं तुझे मारूंगा, मेरे घर में सब भूखे हैं। तो अगर मारना है तो मारो, लेकिन मेरे घर पे मेरी 2 पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको मिल के आऊं, उनको बता के आऊं, बाद में मारना। नहीं तो आप मुझे मारेंगे, वो विधवा हो जाएगी, आक्रमण में वो लोग भी मर जाएंगे, पूरे कुटुंब, मेरे पूरे कुटुंब का नाश हो जाएगा, तुझे पाप लगेगा। मुझे छोड़ दो, मेरे जितने भी पुण्य है वो तुझे लगेंगे, मुझे छोड़ दो। जैसे जैसे नीचे पत्ते गिरते थे, अंदर से हृदय परिवर्तन होना चालू हुआ था, योगानुयोग। पारधी ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर उसके बदले में मुझे पुण्य मिलते हैं तो ठीक है, जाओ और जल्दी आना। रात्रि का तीसरा प्रहर खत्म हो गया, चौथा प्रहर चालू हुआ। ऊपर बैठा बैठा टहलियाँ तोड़ता था, नीचे फेंकता था, बिलीपत्र शिव के ऊपर गिरते थे, बर्तन हिलता था, पानी गिरता था, अभिषेक होने लगा। चौथे प्रहर में हिरनी, 2 हिरनी, 1 हिरन, 3 आए। जब वो लोग आते थे तब एक दूसरे से बात करते थे कि पहले मैं मर जाऊंगा, बाद में तुम मरना। पत्नी कहे पति को मैं मर जाऊंगी, बाद में तुम मरना। उसकी बहन कहे मैं तुम में छोटी हूं, मैं मर जाऊंगी। सब लोग अपना वचन निभाने के लिए एक साथ वहां आके खड़े रहे। तीनों खड़े रहे। पारधी सोचता रहा कि मैंने तीनों को जीवनदान दिया, तीनों भाग सकते थे, तीनों आए। पारधी ने धनुष निकाला, मारने के लिए कहा, बोल कौन पहले मरेगा? सब मरने के लिए आतुर थे, मुझे पहले मार दो, इनको छोड़ दो। वो कहे उसे मार दो, मुझे छोड़ दो, हमारे बच्चे हैं, कोई एक रहेगा, ये 2 रहेंगे तो संभाल लेंगे। मरने के लिए उत्सुक थे, अपने वचन के लिए उत्सुक थे, सत्य पालन के लिए उत्सुक थे। पारधी ने सोचा कि पशु होने के बाद इतनी प्रामाणिकता जो हम इंसान में नहीं है, तो क्यों मुझे मारना चाहिए? पारधी ने अपना धनुष फेंक दिया और कहा जाओ, तुम्हारी प्रामाणिकता देखते हुए मेरा मन हृदय परिवर्तित हुआ है, मैं तुम्हें कैसे मारूं? जैसे तुम्हारा परिवार है वैसे मेरा परिवार है, मैं कैसे मारूं तुम्हें? मैं भूखा रहूंगा तो चलेगा, कुछ ना कुछ हम खा लेंगे, तुम्हें नहीं मारूंगा, तुमने वचन निभाया है। जैसे धनुष फेंक दिया, तीनों को क्षमा किया, जीवन दान दिया, वैसे ही शिवलिंग से भगवान प्रकट हुए। जैसे भगवान प्रकट हुए वैसे हिरण गायब हो गए। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने दर्शन दिए पारधी को, और पारधी को कहा कि तेरी प्रामाणिकता को देखते हुए, तेरे समाधान को देखते हुए, तेरे दया भाव को देखते हुए, तेरी करुणा को देखते हुए मैं प्रसन्न हुआ हूं। रात्रि के 4 प्रहर में योगानुयोग तूने पूजा की। पारधी सोचता है कैसे की? तो ये बिलीपत्र का झाड़ है, पेड़, तुम उसके ऊपर से तो पत्तियां तोड़ते थे, मुझे नीचे मेरे पर गिरती थी, ये बिलीपत्र गिरता था, मेरा शिवलिंग था नीचे, तुम्हारे पात्र से छलका हुआ पानी से मेरा अभिषेक होता था। तो बोले पूजा हुई होगी, लेकिन मैंने पूजा नहीं की। भले तूने पूजा नहीं की, तूने तेरी कर्म पूजा की है।
कि जैसे तेरे में दया, तू शिकार को मारना चाहता था, लेकिन जैसे तेरे में दया भाव हुआ, दया भाव से तेरा भाव करुणा भाव में परिवर्तित हो गया, तू समाधान में चला गया, यही पूजा तेरी सफल हो गई। यानी जो मेरी पूजा करता है और पूजा करते करते अपने भावों को परिवर्तित कर लेता है, वो किस प्रकार से भी पूजा करे, मैं उसको मुक्ति दे देता हूँ। और भगवान शिव ने दर्शन दिए और भगवान शिव ने कहा कि आज की रात्रि तेरे निर्वाण की रात्रि है, आज की रात्रि शिवरात्रि की रात्रि है। तू जीव अपने भावों को परिवर्तित करके शिवत्व को पाया है। जहाँ मेरा वचन है, राम अवतार में तू गृह राज बनेगा और मैं स्वयं राम बनते हुए तेरे घर आऊँगा, तुझे अनुग्रहित करूँगा और तेरे कुल को मैं तारूँगा, जहाँ मैं तुझे मोक्ष देता हूँ। और वहीं से पारधी कर्म करते हुए, भावों को परिवर्तित करते हुए, हृदय परिवर्तन करते हुए, जीव होते हुए भी शिवत्व को पा गया। तो आप सोचें कि आज का दिन योगानुयोग पूजा करने का दिन, आज का दिन भाव से पूजा देखने का दिन, आज का दिन कुछ छोड़ने का दिन। उसने छोड़ा, तीनों शिकारों को छोड़ दिया, कुछ छोड़ने का दिन। जो चीज आपको मोहित करे उसे छोड़े, व्यसन को छोड़ने का दिन। आज का दिन कामनाओं को छोड़ने का दिन, जिसके प्रति आपको शत्रु भाव है उसे क्षमा करने का दिन। आज का दिन दान करने का दिन, पुण्य करने का दिन। आज के दिन में आप जितना भी कुछ करेंगे ये कर्म पूजा हो जाएगी। शरीर के अंदर बैठा हुआ जीव, उसमें रहा शिव, आज आप जो भी देंगे उसको ग्रहण करेगा। और इसलिए कहा गया है कि मूर्ति पूजा के साथ साथ मानव पूजा, पशु पूजा भी आज होनी चाहिए। ऐसे कर्म होने चाहिए जो जड़ में बैठा हुआ शिव भी पाले और सजीव में बैठे हुए शिव को भी आज सब मिल जाए। ऐसी पूजा आज के दिन होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि संत ज्ञानेश्वर शंकर भगवान के लिंग के ऊपर पानी चढ़ाने के लिए नहीं गए, गधे को पानी पिलाया, शिव वहाँ प्रकट हो गए। इसलिए शिव का एक नाम है प्रभव। प्रभव का अर्थ होता है कहीं भी प्रकट हो जाना। प्रभव कि गधे से भगवान प्रकट हो गए। पारधी ने जो पत्ते फेंके, शिवलिंग से भगवान प्रकट हो गए। मार्कंडेय को मारने के लिए जब यम आए तो वहां शिवलिंग से भगवान प्रकट हो गए। जहां जहां चाहे वहां भगवान प्रकट हो, स्तंभ से भगवान प्रकट हो गए। उसे कहा जाता है प्रभव। आज के दिन पूरे विश्व को शिव समझ के आप पूजा करें, भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। इसलिए आज का दिन कुछ छोड़ने का दिन, तृप्ति का मार्ग, तृप्ति पाते हुए मुक्ति का मार्ग लेते हुए मोक्ष पाने का दिन, जीवन में अंत समय में मोक्ष मिले, ये मोक्ष तय करने का दिन आज का दिन। और विश्व में जितने भी जीव है उसे दाना पानी खाना, प्रकाश देने का दिन, पौधों को पानी देने का दिन, ये आज का दिन है। इसलिए आज के दिन कहीं कहीं जगह पे मेले लगते हैं, भंडारे होते हैं, गायों को घास चारा खिलाया जाता है, साधुओं को भोजन किया जाता है। जहाँ जो चाहे शिव समझ के ये कर्म पूजा की जाती है। और वही कर्म पूजा आज हमारे गुरु दरबार में भी दोनों पूजा हुई, भाव पूजा, अर्चन पूजा भी हुई और कर्म पूजा भी हुई। और कर्म पूजा के रूप में ही आज का भंडारा है। जो भी परिवार यहाँ पूजा में बैठे थे, ये भाव पूजा तो थी, लेकिन उनके द्वारा एक कर्म पूजा थी कि जो भी भक्त आए उनको भंडारा मिलना चाहिए, उनको भोजन मिलना चाहिए। तो ये थी कर्म पूजा। जो जीव यहाँ आएंगे भंडारे में खाएंगे, वो जीव से साथ साथ शिव को भी मिल जाएगा। तो ये कर्म पूजा थी। आज के दिन गुरुवार का दिन फुटपाथ के ऊपर भी आज 100, 150, 200 लोगों को फराड़ का भोजन दिया जाएगा, रुद्राश्रम में दिया जाएगा। ये आज की कर्म पूजा का दिन। यानी आज के दिन भी हमारे आश्रम में जहाँ जहाँ हो वहाँ भंडारा पहुँचाया जाएगा। तो जिसने पूजा की वो भाव से हुई, कर्म से हुई,
आप सब भी जो दर्शन करोगे वो भाव पूजा भी होगी, और जो सेवा करोगे आप वो आपकी कर्म पूजा भी होगी। इसलिए शिवरात्रि का दिन वैश्विक पूजा का दिन है। तो आओ हम सब मिल के भगवान गोरखनाथ के चरणों में प्रार्थना करें, आदिनाथ के चरणों में प्रार्थना करें कि आपकी पूजा हमने भाव से की है, हृदय के साथ हमने आपकी पूजा की है, उपासना के भाव से, आराधना भाव से, साधना भाव से हमने आपकी पूजा की है। हमारी जो भी कामना है उसमें से हमें तृप्ति मिल जाए, तृप्ति से हमें मुक्ति मिल जाए, और मुक्ति से हमें मोक्ष मिले। जीवन में जब भी मृत्यु आनी हो वो मृत्यु नहीं, वो मोक्ष का दिन हो, ऐसी हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। पूरे विश्व को हम शिव समझते हैं, सभी जीवों में हम शिव का दर्शन करते हुए आज का दिन भाव पूजा और कर्म पूजा से हम आपके चरणों में हमारी पूजा अर्पण करते हैं। हमारी पूजा का स्वीकार करें। नाथ संप्रदाय के जितने भी भक्त जहाँ रहते हैं सब सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, आनंद में रहे, और सबके जीवन सफल हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। पूरे विश्व में हरियाली फैले, पूरे विश्व में प्रकाश और पानी, पूरा विश्व प्रकाश और पानी से समृद्ध रहे, शुद्ध हवा से समृद्ध रहे। पूरे विश्व में जितने भी जीव है वो सभी जीव सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसी प्रार्थना आपके चरणों में करते हैं। विश्व में शांति फैले, ऐसी भावना से हम हमारा मस्तक आपके चरणों में झुकाते हैं। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए यही प्रार्थना। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़दंगकानीफमच्छेन्दराज चौरंगी रेवाणक भर्तुहरिसज्ञा भूम्याम्ब भुवननाथ सिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र मच्छेन्द्र समर्थ, समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सननाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। आज के शिवरात्रि के दिन हम सब ने मन से, भाव से, तन मन धन से भगवान की आराधना की। पूरे दिन हमारी आराधना चलती रहेगी और रात को भी भगवान शिव की पूजा और महाआरती होगी। तो जो भी भक्त यहाँ आए हैं भोजन प्रसाद जरूर ले, साथ साथ घर बैठे हुए पूरे दिन शिव के नाम का उच्चारण करते रहे और जीवत्व से मुक्ति पाते हुए शिवत्व की ओर बढ़े, ऐसी प्रार्थना करूँ। और कोरोना से मुक्त ये जगत हो जाए, सर्वभवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, और महामारी से विश्व मुक्त हो जाए, ऐसी भगवान के चरणों में शिवरात्रि के दिन सभी लोगों के लिए प्रार्थना। आज के दिन शिवरात्रि में 2 परिवार की ओर से भंडारे की व्यवस्था की गई है। भानुमति बेन आज के दिन भानुबेन अरविंद भाई दर्जी, उनके परिवार की ओर से, उनका परिवार अमेरिका में स्थित है, वो सब मिल के, और जो जहाँ व्यारा में सब रहते हैं वो सब मिल के उनके द्वारा आज भंडारे की व्यवस्था की गई है। साथ साथ शंकर भाई खेरलाव, शंकर भाई पटेल खेरलाव, उनके परिवार की ओर से भी इस बार भोजन व्यवस्था की गई है भंडारे की। तो दोनों परिवार के लिए परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ, सब सुखी रहे, सबको शिवत्व की प्राप्ति हो और सबके जीवन सार्थक हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। साथ साथ अश्विन भाई अंचलिया जो गुरुलीन हो चुके हैं,
गुरुदेव के पुराने भक्त मुंबई से, उनके परिवार की ओर से आज उन्होंने ऐसे सोचा है कि जो भी भक्त भंडारे में भोजन करेंगे उनको पानी की व्यवस्था उनकी ओर से की जाएगी। तो जयेश भाई गड़तिया ने ये बिस्लरी वाटर, अनसुया बिस्लरी वाटर जो यहाँ आने वाले हैं, जयेश भाई गड़तिया एक नई प्रोडक्ट उन्होंने लाई है सबके लिए। तो अश्विन भाई की ओर से ये पानी की बोतल सबको महाप्रसाद के रूप में, पानी व्यवस्था के रूप में दी जाएगी, और जिसे खरीदना हो जयेश भाई से खरीद सकते हैं। तो आज का भंडारा सब परिवारों की ओर मिल के है, सब सुखी रहे। अश्विन भाई की आत्मा को भी पूर्ण शांति प्राप्त हो, गुरु सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और आज सब भरपेट भोजन करें और शिव पूजा करें। आज हमारे यहाँ फराड़ का भंडारा होता है, कई जगहों पे भोजन का भंडारा होता है, लेकिन हमारी वर्षों की परंपरा रही है कि फराड़ का भंडारा हो। तो आज के समय में मैंने यही सोचा कि क्यों ना शिवरात्रि का भंडारा जैसे भोजन के जैसा ही तैयार किया जाए। तो आज के दिन फराड़ की व्यवस्था है, मगर मेरा सबको आग्रह है भरपेट खाना, एक बार नहीं, जितनी बार हो सके उतना फराड़ करे। જેટલું તમે જમો છો એના કરતાં વધારે ખાજો, કારણ કે તમે ખાઓ એટલે ભગવાને ખાઈ લેતા બરાબરની વાત છે। અને મારો પોતાનો નિયમ છે કે ભંડારો કરવો તો ભરપૂર કરવો। આજે ગિરનારમાં પણ ભંડારો હોય છે। દાદા કહેતા હતા કે દાદા કોઈ દિવસ સમાધિ અવસ્થામાં ગિરનાર પહોંચી ગયા, સમાધિ અવસ્થામાં, અને ત્યાં પહોંચી ગયા, શિવરાત્રિના દિવસે ધ્યાન લાગી ગયું સમાધિ, અને સમાધિ અવસ્થામાં ત્યાં પહોંચ્યા। હવે સમાધિ અવસ્થામાં ત્યાં પહોંચી ગયા અને પછી સમાધિ નીકળી, ઉઠી ગયા સમાધિમાંથી, અને જેવા સમાધિમાંથી ઊભા થયા એવા બધા ભક્તોએ પૂછ્યું દાદાને કે દાદા આજે ક્યાં ગયેલા? દાદા કે આજે તો ગિરનાર ગયો એમ કે। તો ગિરનારમાં શું ચાલતું હતું? તો ગિરનારમાં ભંડારો ચાલતો હતો। ભંડારામાં શું ચાલતું હતું? જાવદેવને એમ કે ભંડારો ચાલતો હતો, પણ ભંડારામાં તોફાન થતું હતું એમ। તો શું તોફાન હતું? તો બધા સાધુઓ શંકર ભગવાનની સામે લડાઈ ઉતરેલા હતા। બધા નાગા બાવા શંકર ભગવાનની સામે લડાઈ પર ઉતરેલા, અને શંકર ભગવાન સામે લડાઈ લડીને કહેતા હતા કે અમને લાડુ આપ, ચોખ્ખા ઘીના લાડુ જોઈએ। અને થોડો વખત લડાઈ ચાલી અને લાડુની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ ચોખ્ખા ઘીની, અને લાડુ આવી ગયા એમ કે। અને એ બધી લડાઈ થાળે પાડીને જેમ કે હું આવ્યો છું, આમ દાદા 1974માં બોલેલા। એટલે એમની દુનિયામાં કદાચ હમણાં જાવ તો એવું નહીં હોય, પણ એવા કોઈ આધ્યાત્મિક જગતમાં આ બધી વસ્તુઓ બને છે। અને એટલા માટે સાધુ બાવાઓ કહે છે કે અમે માંગીએ તો ભગવાન પાસે માંગીએ, નાગા બાવાઓ કે અમે માંગીએ ભગવાન પાસે માંગીએ, માણસ પાસે નહીં। અને એ પ્રમાણે આજના દિવસે ભગવાન શંકર પાસે ભંડારો માંગવામાં આવે, અને એ લોકોને ખબર છે કે ભગવાન કોઈને કોઈને વ્યવસ્થા કરીને મોકલે અને થાય છે। અને એ લોકો કહે છે કે બમ બમ બોલે गिरनारी, આ દાદા કહેતા હતા, बम बम बोले गिरनारी भेज दे दाल चावल तरकारी, बम बम बोले गिरनारी भेज दे दाल चावल तरकारी, और घी भेजे तो तेरी मर्जी। હવે જોઈએ કે દાલ ચાવલ તરકારી તો આપ, પણ ઘી આપવું હોય તો તારી મરજી, નહીં આપવું હોય તો તું જાણે, પણ અમને ખબર છે કે તું એ મોકલાય વગર રહેશે નહીં। અને લાડુની વ્યવસ્થા થઈ। આ હકથી માંગવાનું હોય, એવું નહીં માંગવાનું કે જે આપતી વખતે ભગવાનને કંટાળો આવે। ભગવાન ગાડી આપજો, અરે કેટલી આપું ગાડી, થોડી હારી આપજો, બેહાય એવી, પછી ગાડી લીધા પછી પેલી લેતા તો હારી પડતી, થોડું પૈસાનું એરેન્જમેન્ટ ઓછું પડ્યું એમ કે। તમે ભગવાન પાસે કેટલું માંગતા રહેવાનું? ગાડી આપજો એમ કે। ભગવાન ઘર આપજો, પણ હારી કોઈ જગ્યામાં ઘર આપજો। હવે એ ભગવાને તમારા જગ્યા શોધવાની। ભગવાન ઘર આપે તો એવું આપજો કે વ્યવસ્થિત જલ્દીથી જલ્દી બને, કોન્ટ્રાક્ટર સારો આપજો। હવે એ તો શોધી લઉં, કોન્ટ્રાક્ટર કા ભગવાન તમને આપવા? બધી જ વસ્તુમાં ભગવાન ઘર તો સારું બની ગયું, ખબર નહીં કોણ જાણે શું થઈ ગયું, ગળતું બહુ છે, કે કૃપા કરા ગળતું બંધ થઈ જાય, તો એક હતા એમસીલ મારવા આવવાનો તમારા। હવે તમે વિચાર કરો કે આપણે તો એની પાછળ હાથ ધોઈને લાગી પડીએ છીએ। માંગવાનું તો શું માંગવાનું? સાધુઓએ માંગ્યા લાડવા, તે એકલા માટે નહીં માંગ્યા, બધા માટે માંગ્યા। તો આખા સમુદાય માટે લાડવા આવ્યા, બધાએ ખાધા, દાદા જોઈને આવ્યા એક ધ્યાન જગતમાં જઈને। કદાચ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપમાં એવી ઘટના નહીં પણ હોઈ શકે, આ અલગ વર્લ્ડ છે જેમાં આ બધું ઘટે છે।
તેવું જ આપણે અહીંયા પણ છે કે મને આ વખતે ઈચ્છા થઈ ગઈ કે ભરપૂર ભંડારો કરો, તો એક કરાવવાલાની જગ્યાએ 2 કરાવવાલા ભેગા થયા. અને હું પણ આ જ કીધું, બમ બમ બોલે ગિરનારી, ભેજ દે દાલ ચાવલ તડકા, સાબુદાણા ભેજ દે, સાબુદાણા કી ખીચડી, સબ્જી બધું મોકલી આપ. છાશ આવી ગયું, પાણી ભેજે તો તેરી મરજી, ને પાણી હું આવ્યું પછી આજે. બાકી ખરેખર તો પાણી કોઈ આપતું નહીં હોય, પણ એમને ઈચ્છા થઈ ગઈ કે પાણી આપીએ, તો પાણી આવી ગયું. પાણી ભેજે તો તેરી મરજી, આવી ગયું પાણી. એટલે આ જ છે. એટલે સાબુદાણાની ખીચડી બનાવી છે, ભરપેટ ખાજો. દર વખતે તમે મોરિયો ખાવ છો, આ વખતે મોરિયાની વડી બનાવી છે. જે પ્રમાણે ગોળ પાપડી પાડે તે પ્રમાણે મોરિયાની વડી છે, એને બી ભરપેટ ખાજો. છાશ છે, જેટલી પીવાય એટલી પીવો, આરામથી પીવો. લીંબુનું ફરાળી અઠાણું છે, એને પણ ખાઓ, આપણા આશ્રમનું જ બનેલું છે. શક્કરિયા અને બટાકાનું શાક છે, એ પણ ખાજો. અને હાથે હાથે ફ્રૂટ ડીશ છે. દર વખતે અમારા ભક્કાકા કેળા મોકલી આપે, એની વાડીમાંથી આવી જાય કેળા. પણ આ વખતે અમે એવું નક્કી કર્યું કે કોરોના ચાલે છે તો બધાને ફ્રૂટ ડીશ આપો, કે જેથી કરીને બધાનો સ્ટેમિના વધે. એટલે ચીકુ પણ લેવાની જરૂર નહીં પડી, ચીકુ પણ આવી ગયા, કેળા પણ આવી ગયા. કોઈ વેપારીને ખબર મોકલી તો વેપારીએ મફતમાં દ્રાક્ષ પણ મોકલી આપી. તરબૂચ ખવડાવવાની ઈચ્છા હતી તો વધારે પડતા તરબૂચ આવી ગયા. બધું આપોઆપ આવી ગયું બધું. એટલે ભરપેટ ફ્રૂટ ડીશ બી ખાજો. જો કોઈને જોઈએ તો પાછા બી આપજો. અને રસ્તા ઉપર પણ બધાને વ્યવસ્થિત ભોજન જવા દો, ભરપેટ ખાઓ. તમે ખાધું એટલે હું એમ સમજું કે શંકર ભગવાન કૈલાસ પર ભગવાને લઈ લીધું આ બધું. માટે બધા ભરપેટ ભોજન કરે અને મોજ કરે.